In a few moments from now, our honorable chief guest will arrive, and let me take you through the itinerary of the day. After arrival of our honorable chief guest, the parade commander will request for the inspection of parade. Then Rashtriya Dhwaj Toli will be called on. Then Rashtriya Dhwaj Toli will be respected and given Rashtriya salute. कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अकादमी में पदार्पण होने को है। हम सभी प्रतीक्षारत हैं। उनके आने के पश्चात, आगमन के पश्चात हम इस दीक्षांत परेड की अगली कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अकादमी अपना महत्वपूर्ण योगदान रेल सुरक्षा के लिए दे रही है। फैनफेयर की ध्वनि इस बात का द्योतक माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अकादमी में पदार्पण हो चुका है। Well, there we have the sound of eagle indicating the arrival of our chief guest. Well, there we have the sound of eagle indicating the arrival of chief guest of the day, Honorable Shri Arun Kumar, Director General Railway Protection Force. He'll be welcomed by the Director JRRPF Academy. Honorable Chief Guest Shri Arun Kumar, Director General Railway Protection Force. He is being welcomed and will be escorted to dais. Parade is ready to give general salute. भव्य दीक्षांत परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट दिया गया। अब परेड कमांडर उप निरीक्षक कैडेट राहुल माननीय मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट करने के लिए तेज कदमों से सलामी मंच की ओर आते हुए वे महोदय को इस दीक्षांत परेड के निरीक्षण हेतु आमंत्रित करेंगे। उप निरीक्षक कैडेट राहुल। दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण को हाजिर है। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को दीक्षांत परेड के निरीक्षण हेतु आमंत्रित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय निदेशक अकादमी के साथ सुसज्जित निरीक्षण वाहन द्वारा दीक्षांत परेड के निरीक्षण हेतु जाते हुए उनके साथ हैं निदेशक अकादमी, परेड कमांडर उप निरीक्षक कैडेट श्री राहुल। We can see the inspection vehicle moving for inspection of passing out parade. Our Honorable Chief Guest Shri Arun Kumar, Director General Railway Protection Force. Sir is 1985 batch IPS officer of UP cadre. Before taking up charge of RPF in the year 2016, Sir has held
many profiles and headed several organizations. Ever since Sir has taken charge, RPF has changed for better. Sir has given RPF a new vision and new direction. Today, RPF is moving towards becoming a complete force with all the requisite roles and establishments. Sir has recently been chosen as the Vice President of Security Platform of International Union of Railways from July 2020 to July 2022. After that, Sir will be the President of the platform for the further 2 years. It is indeed a matter for pride for RPF that it is being represented at such a high chair at international level. The vision and direction in the field of working, especially All India anti-touting raids, is itself a proof of Sir's unmatchable leadership. Today RPF is moving towards vision of 100% elimination of touting in railway ticket booking. Several operations, Operation Number Plate, Operation Thunder, Operation Box, to name a few, have been undertaken. In the areas of administrative reforms, getting the organized Group A status, formation of chorus, the Commander for Railway Safety, compilation of several RPF manuals, human resource matters related to transfer, posting and promotion of staff have all been undertaken under Sir's leadership. बैंड की मधुर ध्वनि पर निरीक्षण संपन्न हुआ और अब महोदय सलामी मंच की ओर वापस करते हुए खास निरीक्षण के समय बजाई जाने वाली धुन बैंड द्वारा बजाई गई आनंद लोक धुन निरीक्षण वाहन चला रहे हैं श्री अजीत सिंह। छातियां आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। हमारे कैडेट्स गर्व से रोमांचित, पुलकित और अब वाहन मंथर गति से पुनः मंच की ओर बढ़ता हुआ। Yes, we can see the inspection vehicle moving towards the saluting dais, marking the completion of inspection. Honorable Chief Guest, it is being escorted by Director Academy and the Parade Commander. The vehicle has arrived at the escorting dais. सलामी मंच तक वाहन पहुंच चुका है। श्रीमान दीक्षांत परेड को शपथ ग्रहण एवं मंच से उतारने की आज्ञा प्रदान करें। परेड कमांडर द्वारा शपथ ग्रहण की अनुमति मांगी गई। माननीय अतिथि महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गई और अब तेज कदमों से परेड कमांडर श्री राहुल वापस अपने स्थान की ओर। इनके चुस्त कदम, इनके दम खम का परिचायक, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। Commander going back to take his position. In a few moments from now, Rashtriya Dhwaj Toli will arrive. They will be respected with Rashtriya salute. Here comes the Rashtriya Dhwaj Toli. All are requested to stand up and uniform persons to salute.
बैंड द्वारा इस समय हथरोई धुन बजाई जा रही है। गौरव का प्रतीक सर्वधर्म ग्रंथ, जिसमें गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब हमें इस बात का संकल्प दिलाते हैं कि हमें भेदभाव से मुक्त होकर देश और राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना है। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंगो ज़बर के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग न रास आए, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। हमें तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को साकार करना है। ये सरजमी है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पर वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पर लश्कर न पल सकेंगे कभी। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। Beautiful sacred ritual. Pledge that we should always be ready to serve the country and the nation without any kind of discrimination. A force personnel should rise above any kind of bias that we have the baggage of. अब समय है आदरणीय निदेशक महोदय द्वारा शपथ ग्रहण कराए जाने का। आदरणीय महोदय से निवेदन है, कृपया कैडेट्स को शपथ ग्रहण कराएं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों को राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पूरा करूंगा। Ecstatic environment of work is worship. राष्ट्रीय ध्वज डोले, कूच कर। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामत। It's time for the quick march past. Chief guest Dias, parade commander and platoon commander taking their position. Parade commander Rahul Kumar, followed by parade commander, followed by target in charge Cadet Naveen Kumar.
followed by platoon under commandership of Cadet Arun Kumar, followed by Nishan Toli under commandership of AFC Probationer Aditya and flag bearer Instructor Ramesh Kumar, followed by platoon number 2 commanded by Cadet Nitin P, marching smart, marching steady towards the target. These cadets इस संसार समर प्रांगण में जीवन है क्या एक संग्राम, रंगमंच पर नायक बनकर दिखलाएं हम अपना काम। इस संसार समर प्रांगण के नायक आज इस ऐतिहासिक दिवस के बाद बल्कि मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। सुंदर दृश्य सजी धजी परेड निरंतर आगे बढ़ती हुई, शांति के सिपाही चले, क्रांति के सिपाही चले, लेके खैर ख्वाही चले, रोकने तबाही चले, वैर भाव तोड़ने, दिल से दिल को जोड़ने, काम को संवारने, जान अपनी वारने। आज के बाद से रेल की सेवा में समर्पित ये कैडेट्स रेल की सेवा में पण से लग जाएंगे। धीरे धीरे परेड सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए ये कैडेट्स निकलेंगे। सुंदर दृश्य salute by the parade commander. Here comes platoon number 1. Salute by commander of platoon 1, Cadet Arun Kumar. Showing respect to the honorable chief guest. Here comes the Nishan Toli, walking in front of the dais. Salute by number 2 platoon. Striding tall, perfectly grooved, rhythmic marching, lined up spectacularly. Formidable display of marching. गर्व से सीना ताने हुए दृष्टि मुख्य अतिथि की ओर सधे कदमों से सलामी देते समय स्पष्ट गौरव झलक रहा था इनके चेहरे से। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है पराजय, हीन वचन मुख से न निकालो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। RPF का यह बैंड जिसे कमांड कर रहे हैं पूर्णमासी प्रसाद, हमारे कैडेट्स में जोश, उमंग और उत्साह का संचार करती हुई आज के बाद से अपने कर्म क्षेत्र में हमारी कैडेट जब उतरेंगे तो राजकीय रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और रेल शासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हुए ये देश और राष्ट्र की सेवा में तत्पर हो जाएंगे। स्वर में वीरता यदि नहीं वृथा बंधन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है, सिर पर जिसके असिघात रक्त चंदन है, भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है। दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पत्थरी खुलते हैं। रैतिक वेशभूषा में सजी धजी ये परेड पुनः अपने स्थान की ओर अग्रसर। The RPF band taking its place, and we can see the parade moving toward the inspection line. These brave hearts, full of self-confidence, full of vigor, will ensure the discipline wherever they will go. Indeed, a very special occasion for all these cadets.
presenting a beautiful example of their learning here. Parade taking its position on inspection line. Time for general salute to the Honorable Chief Guest. Now, I will kindly request Director JRRCF Academy to say a few words of respect for the Honorable Chief Guest. दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महानिदेशक श्री अरुण कुमार, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता उप महानिरीक्षक, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल एवं अकादमी के उपस्थित समस्त अधिकारीगण, प्रशिक्षु अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, इंडोर व आउटडोर फैकल्टी के सदस्य तथा प्रिय प्रशिक्षु उप निरीक्षक कैडेट्स, हमारा आमंत्रण स्वीकार कर अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बावजूद आतिथ्य स्वीकार कर हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए मैं रेलवे सुरक्षा बल के मुखिया माननीय महानिदेशक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बताना चाहूँगा कि दीक्षांत परेड में सम्मिलित 55 उप निरीक्षक कैडेट्स में से 54 उप निरीक्षक कैडेट्स रेलवे सुरक्षा विशेष बल के चयनित उप निरीक्षक हैं, जिन्होंने इस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तथा एक उप निरीक्षक कैडेट रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र खड़गपुर से प्रशिक्षित है। सभी प्रशिक्षु कैडेट अंतिम परीक्षा में सफल होकर प्रस्तुत दीक्षांत परेड में सम्मिलित हुए हैं। इन प्रशिक्षित उप निरीक्षक कैडेट्स में कुल 48 कैडेट ग्रेजुएट एवं तकनीकी ग्रेजुएट हैं, 4 प्रशिक्षु पोस्ट ग्रेजुएट, 3 प्रशिक्षु मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। इन प्रशिक्षुओं द्वारा इस अकादमी में दिनांक 16 सितंबर 2019 को अकादमिक प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट किया गया था और 9 माह के निर्धारित प्रशिक्षण काल में इनके द्वारा आउटडोर विषयों के अंतर्गत इन्फेंट्री ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, शारीरिक दक्षता, पीटी, परेड, फील्ड क्राफ्ट आदि विषयों तथा अंतरंग विषयों के अंतर्गत इन्हें कानून, रेलवे में अपराध, सिक्योरिटी ऑन रेलवेज, आपदा प्रबंधन, मनोविज्ञान एवं मानव संसाधन, आरएसएमएस, कंप्यूटर इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तथा केस स्टडीज़ का भी सम्यक ज्ञान प्रदान किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के उच्चाधिकारियों तथा अन्य विषयों के विशेषज्ञों से गेस्ट लेक्चरर के माध्यम से विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई और इस प्रकार बहुमुखी प्रशिक्षण प्राप्त कर आज ये प्रशिक्षु फील्ड में अपना योगदान देने के लिए पास आउट हो रहे हैं। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि इसी प्रशिक्षण के दौरान
कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी का प्रकोप हुआ, जिसके कारण प्रशिक्षण थोड़ा बाधित हुआ था। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे प्रशिक्षुओं द्वारा कई माह तक निरंतर बिना बाहरी दुनिया के संसर्ग में आए अकादमी कैंपस में ही धैर्यपूर्वक रहकर पूर्ण अनुशासन का परिचय दिया गया। इस सावधानी एवं अनुशासन का परिणाम यह रहा कि इस अकादमी का कोई भी प्रशिक्षक या अन्य अधिकारी इस विश्वव्यापी महामारी के वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। प्रशिक्षुओं के इस सहयोग की भावना के लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षार्थियों द्वारा पूरी लगन एवं मेहनत से आउटडोर की सिखलाई तथा इंडोर के विषयों को आत्मसात करते हुए अंतरंग एवं बहिरंग विषयों में अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रशिक्षु अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उप निरीक्षक कैडेट निधिन पी ऑलराउंड बेस्ट, उप निरीक्षक कैडेट राहुल बाह्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ तथा उप निरीक्षक निधिन पी ही अंतरंग विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इंडोर बेस्ट साबित हुए हैं। इन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इनके साथ साथ सभी प्रशिक्षुओं से आशा करता हूँ कि अकादमिक प्रशिक्षण काल में ग्रहण की गई शिक्षा को आत्मसात करते हुए फील्ड में पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं सेवा भाव का परिचय देते हुए अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और रेल सुरक्षा बल का नाम रोशन करेंगे। यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि अभी तक रेलवे सुरक्षा बल को रेल का एक शाखा या ब्रांच माना जाता था, लेकिन माननीय महानिदेशक के कुशल नेतृत्व में यह कहते हुए मुझे संकोच नहीं होगा कि अब रेल सुरक्षा बल रेल सिस्टम का एक पिलर यानी कि स्तंभ बन चुका है। प्रशिक्षुओं को मैं आगाह करना चाहूँगा कि फील्ड में जाने के बाद व्यवहारिकता के तकाजे पर संभावित प्रवृत्ति हो सकती है। किले की बात किले में और जिले की बात जिले में। आप कृपया इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएंगे। इस संदर्भ में मैं स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम महोदय को उद्धृत करना चाहूँगा। उनके अनुसार when a principle learned in the classroom is borne out by practical experience, it creates a strange sense of excitement, akin to unexpectedly running into an old friend among a crowd of strangers. साथ ही साथ मैं रेलवे सुरक्षा बल के साथी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि every passing out parade opens a floodgate of energy which properly harnessed by the organization will aid in service to the nation. अंत में मैं माननीय महानिदेशक का पुनः आभार व्यक्त करते हुए एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों को भी उनके पधारने के लिए धन्यवाद देते हुए आज पास आउट हो रहे प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय है पुरस्कार वितरण का। निदेशक अकादमी से निवेदन है, कृपया वे इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इन होनहार कैडेट्स को पुरस्कार प्रदान करवाने की कृपा करें। गौरवपूर्ण क्षण। उमंग और उत्साह से भरे हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। उपनिरीक्षक विजेता सच्चा, विजेता सैल्यूट, विजेता रेस। उपनिरीक्षक कैडेट श्री निधिन पी, आपको अंतरंग परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए
पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उप निरीक्षक कैडेट श्री निधिन पी। Cadet Nitin P. awarded first prize in indoor examination. A moment of pride for the cadet. गर्व का क्षण मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान प्राप्त करते हुए उप निरीक्षक कैडेट श्री निधिन पी, जिन्होंने अंतरंग परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब गर्व से राहुल, आपको बहिरंग परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उप निरीक्षक कैडेट श्री राहुल। Cadet Rahul Kumar getting first position in outdoor examination. A proud moment indeed to get prize from Honorable Chief Guest. श्री राहुल ने सम्मान प्राप्त किया माननीय अतिथि महोदय से और अब पुनः अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए उप निरीक्षक कैडेट श्री राहुल। उप निरीक्षक कैडेट श्री निधिन पी, आपको सर्वश्रेष्ठ कैडेट होने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उप निरीक्षक कैडेट श्री निधिन पी। Cadet Nitin P marching on to the dais. As is the best cadet in overall category. A very proud moment indeed. Getting awarded by Chief Guest himself. पुनः सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद श्री निधिन पी, उप निरीक्षक कैडेट, अपने स्थान की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी निष्ठा और लगन से आज उन्हें ये दिन हासिल हुआ है। विजेता सज्जा, विजेता सैल्यूट, विजेता पीछे मुट, विजेता सामने से चल। Award is going back to their position. A moment of pride. A very memorable moment indeed. सम्मान प्राप्त करने के पश्चात सधे कदमों से सीना तना हुआ दृष्टि सामने कि कैडेट अपना पूर्व स्थान ग्रहण करने को, परेड में सम्मिलित होने को वापस परेड स्थल की ओर। Words of inspiration. This will definitely boost the confidence of our cadets. श्री प्रणव कुमार, उप महानिरीक्षक श्री प्रदीप गुप्ता, अकादमी के सभी राजपत्रित अधिकारीगण, डीआईजी आरपीएसएफ श्री आलोक कुमार, इस अवसर पे इस हमारे आए हुए अतिथि आईजी एसएसबी श्री सौरभ त्रिपाठी, एसपी रेलवे लखनऊ श्री सौमित्र यादव, डीआरएम नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ श्री संजय त्रिपाठी, सभी इस पीओपी में भाग ले रहे हमारे प्रशिक्षु उप निरीक्षक और अकादमी परिवार के सभी सदस्य, मीडिया के पधारे हमारे बंधु भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए ये हर्ष का विषय है कि मैं इस पासिंग आउट परेड में आपके समक्ष आ पाया। आज यह परेड
अलग है, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि इस पासिंग आउट परेड का आयोजन इस कोरोना महामारी के दौर में कराया जा रहा है, और जिन्हें पुलिस परेड का अनुभव है उन्होंने ध्यान दिया होगा कि परेड में कुछ जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन कमांड्स होते हैं उनमें भी परिवर्तन करना पड़ा। आपने देखा होगा कि निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, ये सारे कमांड नहीं हैं। ये कोरोना काल का परिवर्तन है जिसके तहत ये परेड आयोजित कराया जा रहा है। ये सारे प्रशिक्षु जो हमारे समक्ष खड़े हैं, ये पिछले सितंबर से ही प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन जैसा निदेशक अकादमी ने बताया कि कोरोना के कारण कुछ विघ्न हुआ इनके ट्रेनिंग में, और आज ये ट्रेनिंग संपन्न करके पास आउट कर रहे हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रकृति को भी, क्योंकि इस सब भादों के मौसम में परेड आयोजन करना हमेशा एक जोखिम का कार्य होता है। बारिश का मौसम होने के बावजूद आज प्रकृति ने हमें ये अवसर दिया कि खिली धूप और इतने सुंदर माहौल में ये पासिंग आउट परेड आयोजित हो पाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मिला के करीब 12,000 जवानों की भर्ती आरपीएफ और आरपीएसएफ में किए। 74-75 लाख आवेदन आए थे, और उसके बाद पूरी तरह से पूरे भारत में एक साथ ऑनलाइन एग्जाम कर पाने के बाद आप सब भाग्यशाली हैं कि आप उन सभी लोगों में कुछ लोग हैं जो चयनित होके इस बल को योगदान दे रहे हैं। इस बार के हमारे भर्ती में हम लोगों ने एक अलग सिस्टम बनाया था, क्योंकि यह अखिल भारतीय फोर्स है और हमारे 16-17 रेलवे जोन्स के अंदर में इनके ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं। तो कई बार कई समस्याएं होती हैं कि नॉर्थ का आदमी साउथ, साउथ का आदमी नॉर्थ चला जाता है। तो हम लोगों ने इस बार कोशिश की कि हम जोनल सिस्टम के तहत जो है वो भर्ती कर पाएँ, और रीजनल 4 जोनों के अलावा आरपीएसएफ का एक अलग जोन बनाया गया था, और आप उस आरपीएसएफ जोन के अंतर्गत चयनित होकर यहाँ आए। जैसा कि आपको मालूम है कि आरपीएसएफ एक स्ट्राइकिंग फोर्स है आरपीएफ का, रेलवे का, और इसकी एक अपनी पहचान रही है। मैं उत्तर प्रदेश काडर का हूँ, और मुझे याद है कि 1993 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मैं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर था, और चुनाव के आयोजन के लिए आरपीएसएफ हमारे यहाँ आई थी, और उस समय उनकी एक खास वेशभूषा होती थी। उनका हैट होता था, उनका लाल उनका लिनियर्स होता था, उनके पोशाक थोड़े भिन्न होते थे, और वो अलग से जो है वो चिन्हित हो पाते थे, और काफ़ी प्रभावशाली और इफेक्टिव फोर्स हुआ करती थी। हमारे कई थानाध्यक्ष जो है वो आरपीएसएफ को बाय नेम मांगना चाहते थे जहाँ भी समस्या होती थी उसके लिए। लेकिन जब मैंने आरपीएफ ज्वाइन किया, मैंने देखा कि आरपीएसएफ का जो एक अलग पहचान थी वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है, और वो ट्रांसफर भी आरपीएसएफ में होने के कारण और कई कारणों से उसके जो डिस्टिंक्ट एक पहचान थी अपनी, वो थोड़ी सी धूमिल पड़ती जा रही थी। और इसी कारण से जो है वो मैंने ये चाहा कि आरपीएसएफ की भर्ती बिल्कुल अलग हो, उनका प्रशिक्षण बिल्कुल अलग हो, वो अलग से जैसी फोर्स ये पहले थी उस रूप में ये फोर्स जो है वो फिर से खड़ी हो, उसका प्रयास किया जा रहा है। और उसमें एक अच्छी कड़ी तब बनी जबकि इस फोर्स के एक बटालियन को में से एक कमांडो फोर्स, कोरस कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी, पिछले साल हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा जो है वो सब लोकोर को समर्पित किया गया, और आज वो कोरस नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, कश्मीर वैली में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अपना योगदान दे रही है। तो वो जो एक प्रोफेशनलिज्म आरपीएसएफ में लाने का प्रयास किया जा रहा है, आप सबको उसमें अग्रणी भूमिका निभानी है, और फिर से हमें जो है वो आरपीएसएफ को एक स्ट्राइकिंग और प्रोफेशनल फोर्स जो है वो बनाना है।
यहाँ जो आप लोगों का प्रशिक्षण हुआ, इसके बाद अब आप फील्ड में प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। फील्ड प्रशिक्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आपको अपने इनिशिएटिव पे, यहाँ तो आपके पीछे आपके उस्ताद सारे लोग लगे रहते थे, लेकिन वहाँ आपको अपनी पहल बना के अपने इनिशिएटिव से, क्योंकि जहाँ फील्ड में आप जाएंगे सारे लोग व्यस्त हैं, सबके पास काम है, आपको अपने पहल पे चीज़ों को देखना है, समझना है, सीखना है। और आज जिस ढंग से ज़माना चेंज हो रहा है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उसकी तरफ और कुछ कोरोना ने भी जो है वो डिजिटाइजेशन का जो हमारा स्पीड है उसको पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है वो और तेज कर दिया है। वो आपको देखना है, सीखना है कि किस ढंग से हम लोगों ने रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम करके जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको हम लोगों ने पूरे देश के CCTNS जो क्राइम सिस्टम है उसके साथ लिंक किया है। जो ICJS है हमारा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आज RSMS उसका एक पार्ट है। और आगे भी किस ढंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर सकते हैं, ये आज के टाइम की ये डिमांड है। और आपको उस फील्ड में खुद पहल लेके आगे सीखना है, आगे बढ़ना है और उसमें आपको अग्रणी हर हालत में रहना है। प्रशिक्षुओं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस कोरोना की महामारी में जैसी स्थिति बन गई थी कि पूरी तरह से रेल का संचालन कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। जब रेल का संचालन दोबारा शुरू करने की बात हुई तो सब लोगों को काफी स्ट्रेस, तनाव हो रहा था कि भारतीय रेल जहां एक के ऊपर एक आदमी चढ़ के जाता है, वहां हम इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे हम जो है इस महामारी के दौर में ट्रेन चला पाएंगे। और उसमें RPF ने एक अग्रणी भूमिका निभाई और स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग करके हर जो भी श्रमिक स्पेशल चला या जो भी ट्रेनें अभी भी चल रही हैं, उन सब में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। पैसेंजर्स के सहयोग से ये अभी तक चल रहा है। जब हमारे श्रमिक ट्रेनों का संचालन हो रहा था तो ड्राइवर और गार्ड के सिवा सिर्फ RPF के एम्प्लॉय पूरे के पूरे ट्रेन में थे, जिन्होंने खाना बांटने से लेके उनकी को मेडिकल सहायता पहुंचाने से लेके सारा का सारा काम किया। ये जो RPF और RPSF का ये कंट्रीब्यूशन कोरोना काल में हुआ, उसको हाईएस्ट लेवल पे जो है वो उसको अप्रिशिएट किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एक जवान इंदर, जो एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही थी और वहाँ पे एक बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा था और उसको जो है वो दूध पहुँचाने के लिए ट्रेन खुल गई थी और अपने जान की परवाह न करते हुए उसने उस माँ को दूध दिया। ये घटना सोशल मीडिया से लेकर अन्य मीडिया पर इतना पॉपुलर हुआ या इतना इसने आकृष्ट किया ध्यान लोगों का स्पोर्ट्स के प्रति कि कितनी इम्पैथी और सिंपैथी के साथ एक जवान जो है फोर्स का ये काम कर रहा है। और इसको ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो इसकी सराहना की गई और सर्टिफिकेट इशू किया गया US यूनिवर्सिटी फॉर पीस के द्वारा। ये दिखाता है कि फोर्स में बदलाव, किस ढंग का चेंज, किस ढंग का परिवर्तन इस फोर्स में हो रहा है, किस ढंग से इसके जवान इम्पैथिकली पैसेंजर्स के लिए, पीड़ितों के लिए एक नए रूप में जो है वो सामने आ रहे हैं। जिस टाइम में पूरा का पूरा लॉकडाउन था, माननीय रेलवे मंत्री के निर्देशानुसार लाखों खाने जो है वो हमारे RPF और RPS जवानों ने जो है पूरे देश में बांटे। उसमें बहुत सारा खाना उन्होंने अपने स्तर पर तैयार किया, अपने पॉकेट से पैसा दिया, खाना बनवाया और उसको बांटा। ये जो एक नया रूप RPF और RPSF का सामने आया है, हमें इस पर आगे बढ़ना है, इसको आगे ले जाना है। और जितने भी प्रोफेशनल परिवर्तन, चेंजेज रेलवेज में आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ये कोरोना का और लॉकडाउन दिख रहा हो, लेकिन भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सभी मिनिस्ट्री में जो रुके हुए काम थे वो नए ढंग से उनका आकलन हो और नए ढंग से जो है वो कोरोना के बाद कार्य करने की पद्धति बदली है। रेलवे भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज बाहर से भले लग रहा हो कि बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो हमारा गुड्स ऑपरेशन है वो लॉकडाउन से पहले जितना था उससे ज्यादा बढ़ गया है। पूरी तरह से मेहनत की जा रही है कि सारा का सारा जो लोडिंग हमारा है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने तक और ज्यादा हम उस पर जो है लोडिंग कर पाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में सिर्फ रेलवे थी जिसने कोई क्राइसिस नहीं आने दी।
पूरी तरह से कोयले की ढुलाई हुई, इससे कहीं भी पावर प्रोजेक्ट जो है वो बंद नहीं हो पाया। एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो खाद्यान्न, दूध, सब्जी, जितनी भी आवश्यकताओं की चीज होती है उसकी ढुलाई इस ढंग से हुई कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। उस विषम परिस्थिति में रेलवे अपना काम करती रही, अपना सामान ले जाती रही, पार्सल्स ले जाती रही, दवाइयाँ कितने किलोमीटर जो है वो दवाइयाँ पहुँचाई गई रेल के द्वारा उन दिनों में। ये सारे जो रेलवे के काम कोरोना के काल में हुए हैं उसका रिकॉग्निशन, उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस फोर्स के पार्ट हैं और हमें अब अपने इस फोर्स को एक अगले स्तर पर ले जाना है। जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज होती हैं, जो आज नॉर्थ ईस्ट में हमारा संचालन बहुत कम था, आसाम तक सीमित था, आज इतना हमारा काम जो है वो मणिपुर से लेकर त्रिपुरा से लेकर सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में उसका जाल फैल चुका है। पहले ये सुरक्षा आर्मी करती थी नॉर्थ ईस्ट में, फिर इंडियन रिजर्व बटालियन आने लगी और अब हमको ये जिम्मेवारी आरपीएसएफ के अपने ऊपर लेना है कि नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशन में जो भी वहाँ पे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं उनके खिलाफ सतर्क रहते हुए रेल ऑपरेशन को स्मूथली हमको वहाँ पे चलाना है। आपको मालूम है कि हमारी ट्रेनें नक्सल एरियाज में जो है वो लाइनें बिछ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कोयला, स्टील, इन सारी चीज़ों की माइनिंग होती है, इसलिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक जाता है और आगे जा रहा है। तो उस छत्तीसगढ़ के बीहर इलाकों में हमें अपने ट्रेन को अपनी सुरक्षा प्रदान करनी है। अभी तक हम मुख्यतया केंद्रीय रिजर्व बलों की मदद लेते रहे हैं रेलवे ऑपरेशंस में नक्सल एरिया में, लेकिन हमको अब अपने पाँव पे खड़ा होना है। ये जिम्मेदारी आरपीएसएफ, कोरस और हमारे अपने बल को लेना है। आपको मालूम है कि वैली की क्या स्थिति है। वैली में ट्रेन ऑपरेशन ऑलरेडी है और अब विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, जिसके अगले साल बन जाने तक कटरा से लेकर बारामूला तक कंटिन्यूअस रेल ऑपरेशन चालू हो जाएगी। उस वैली में हमें अपना रेल ऑपरेशन की सुरक्षा अपने हाथों से करनी है। तो ये जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस वाले क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट आरपीएसएफ का, कोरस का हमारे लिए एक चुनौती है और जिसको हम आगे बढ़ के लेंगे और वो सुरक्षा हम पूरी तरह से भारतीय रेल के साथ अपने साथ लेंगे और इस कार्य में आप सबों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप जब फील्ड में जाएंगे, आप सुपरवाइजर होकर होते जाएंगे, आपके नीचे में कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआईज काम करेंगे। आपकी जिम्मेवारी होनी है कि उस स्तर पर किस ढंग से उनको नेतृत्व प्रदान किया जाए, अपने अंदर काम कर रहे लोगों के बारे में जानकारी दी जाए, उनके दुख सुख को समझाया जाए, उनसे कैसे बेस्ट आउटपुट लिया जा सकता है उसको देखने के लिए जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एंगल है, उस पर आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। जो जवान आपके अंदर काम करेंगे उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है, और वो मोटिवेटेड हम तब रख सकेंगे जब आजकल की जो चुनौतियां हैं उसकी तरफ हम ध्यान दें। संचार माध्यमों में परिवर्तन और क्रांति होने के साथ हमारे हर जवान के पास एक मोबाइल है। वो घर से दूर काम करता है, लेकिन हर छोटी बड़ी समस्या मोबाइल से उसके तक पहुंचती रहती है। उससे एक तो काम का तनाव और घर के बारे में रोज 2-2 घंटे में खबर आने पर एक दूसरा तनाव। वो उस तनाव की स्थिति में बहुत सारे जगहों पे, हमारे यहाँ भी, बाकी फोर्सेज में भी आप देखते होंगे कि सुसाइड्स, कई जवान आत्महत्या कर लेते हैं तनाव के कारण। अभी इस कोरोना काल में इन जनरल जो है वो स्ट्रेस बढ़ने के कारण डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ी है। हमें तब तक हम इस समस्या को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा एसआई लेवल और इंस्पेक्टर लेवल अपने जवानों से सीधे नहीं जुड़ेगा, उसकी सारी समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं करेगा। मानवीय रूप से उनसे जुड़ने की जरूरत है, उनके तनाव को देखने की जरूरत है, जो समस्या का समाधान हो सकता है उसको पूरा करने की जरूरत है, ताकि वो तनाव रहित होकर देश की रक्षा का कार्य कर पाए। और इसमें जो सब इंस्पेक्टर लेवल की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही हैं जो उन तक डायरेक्ट कनेक्ट करके उनको समझ सकते हैं, उनकी दिक्कतों को देख सकते हैं, उसका रिड्रेसल कर सकते हैं और उनको जो है उनसे बेस्ट आउटपुट जो है वो आप ले सकते हैं। इसलिए सब इंस्पेक्टर लेवल की जो एंट्री है वो हमारे फोर्स या किसी फोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे जो सब इंस्पेक्टर लेवल पे एंट्रीज थी
उसमें बहुत सारे हमारे अधिकारी थे, रिटायर्ड ऑफिसर हमारे यहाँ आए हुए हैं आज इस परेड पे। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे सब इंस्पेक्टर लेवल को ये शिकायत थी कि उन्हें वर्चुअली एक ही प्रमोशन आरपीएफ में मिल पाता है और वो एडहॉक एएससी के रूप में रिटायर कर जाते हैं क्योंकि उनका कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। मैंने फोर्स ज्वाइन करने के बाद 6 बैच का एक साथ यूपीएससी के थ्रू उनका कंफर्मेशन कराया और आज जो हमारे सब इंस्पेक्टर लेवल में एंट्री हुई है वो लोग आज सीनियर कमांडेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहां सीनियर कमांडेंट से रिटायर करेंगे। तो हमारी भी जो भूमिका है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, आपके जो प्रमोशन लेवल न्यूज हैं, आपके जो सर्विस इश्यूज हैं, उनको रेलवे बोर्ड कैसे हैंडल करता है हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको करेंगे। लेकिन आपको जो है वो फील्ड में बेस्ट आउटपुट देना है और बेस्ट आउटपुट लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज यदि सामान्य दिन होता तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, घर के लोग हैं, वो यहाँ आ पाते, आपको पास आउट होते देख पाते, लेकिन सब लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ फैमिलीज को इनवाइट किया जा सकता हो। लेकिन आज लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इस फंक्शन का, मुझे उम्मीद है कि वो आपको देख रहे होंगे और आपको पास आउट करते हुए काफ़ी खुश हो रहे होंगे, भावुक हो रहे होंगे कि आज ये दिन आया जब आप यहाँ से एक यूनिफॉर्म मैन की तरह निकल रहे हैं। ये जो यात्रा होती है एक सिविलियन के रूप में ट्रेनिंग सेंटर में आना और एक यूनिफॉर्म मैन के रूप में बाहर निकलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी यूनिफॉर्म मैन के लिए, चाहे एज ए कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे वो आईपीएस भर्ती हो या और कहीं पे भर्ती हो। वो हमेशा अपने जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसके अपने उस्तादों को, अपने प्रशिक्षुओं को हमेशा ध्यान रखता है, अपने स्क्वाड मेट्स को, अपने कार्डर मेट्स को हमेशा ध्यान रखता है। और हमेशा आपको ये महीना जो बीते हैं आपके साल भर के इस एकेडमी में, वो हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इसी अच्छी यादों के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your kind words of inspiration. It will definitely boost the incident of our courage. Now I will request Director Academy to present a memento to the chief guest in the memory of this event. Thank you, sir. I will request Deputy Inspector General Training to kindly present a vote of thanks for chief guest official presence at the ceremony. दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार, मंचारूढ़ निदेशक अकादमी श्री प्रणव कुमार, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, पुलिस प्रशासन से उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, स्थानीय रेलवे प्रतिष्ठान तथा मंडल से समारोह की शोभा बढ़ा रहे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा डीआरएम महोदय, उप महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष बल नई दिल्ली, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, आरडीएसओ तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल के उपस्थित अधिकारीगण, हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, अकादमी के उपस्थित समस्त अधिकारीगण, प्रशिक्षु अधिकारीगण, इंडोर व आउटडोर फैकल्टी के सदस्य तथा प्रिय प्रशिक्षु उप निरीक्षक कैडेट्स, मैं मुख्य अतिथि और रेलवे सुरक्षा बल जैसे फोर्स के मुखिया श्री अरुण कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया और अपने आशीर्वचनों से प्रशिक्षुओं तथा बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। हम आभारी हैं निदेशक अकादमी श्री प्रणव कुमार जी के, जिन्होंने दिनांक 14/8/2020 को अकादमी के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया और परेड को सफल बनाने हेतु अति महत्वपूर्ण निर्देशन दिया। मैं पुनः इस अवसर पर उपस्थित पुलिस के सम्मानीय अतिथिगण, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं स्थानीय रेलवे सुरक्षा बल
रेलवे सुरक्षा विशेष बल करने पर धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं उत्तर रेलवे लखनऊ के इंजीनियरिंग विभाग, विद्युत विभाग तथा वित्त विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस परेड समारोह को सफल बनाने में विशिष्ट योगदान दिया है। मैं प्रेस व मीडिया के अपने सम्मानीय पदाधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आउटडोर एवं इंडोर क्वार्टर मास्टर तथा आईपीएफ हेडक्वार्टर शाखा के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अकादमी परिसर को सजाने, संवारने तथा परेड को उत्कृष्ट कोटि का बनाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। अब परेड कमांडर द्वारा परेड की निष्क्रमण के लिए आज्ञा मांगी जाएगी। We can see parade commander quickly moving towards the dais. श्रीमान दीक्षांत परेड को निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें। Permission granted. The Nishan Toli will go off the field in respect of Nishan and uniform personnel to salute. Parade commander getting back to the position. Here comes Nishan Toli. निशान को सम्मान देगा जनरल Flag bearer Instructor Amit Kumar. And the commander Deputy Professor Aditya. Well, ladies and gentlemen, now it's time for तीन लाइन से दो लाइन परेड सिद्धा। दाहिने चलेगा, दाहिने बाएं। निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं घूम, दाहिने बाएं से धीरे चल। यह दीक्षांत परेड धीरे चाल में मंच के दोनों तरफ से गुजरने के लिए आ रही है। इनकी अनुशासनबद्ध चाल, इनके अनुशासित मन प्राण का परिचायक है। इन कैडेट्स का सीना तना हुआ, दृष्टि सामने, हृदय में आशा के हजारों दीपक जलाए, सुनहरे भविष्य की सुंदर योजनाएं समेटे ये कैडेट आज इस दीक्षांत परेड की अंतिम मंजिल की ओर उमड़ते हुए
भारत माँ के अमर सपूतों, पथ पर आगे बढ़ते जाना, पर्वत नदियाँ और समंदर हंसकर पार सभी कर जाना। तुम में हिमगिर की ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है, लहरों की मस्ती है तुम में, सूरज जैसी तरुणाई है। With all the dreams and aspirations, they will be finally crossing the passing out line. A moment of joy, a memorable feat. They will be passing through both the sides of the stage. They march into the future to the rhythm of past of training, discipline, and bonding. Here comes the parade commander with gleaming sword, held in salute. Here they come marching in twos, platoon commander, holding swords in salute. हमारे इन कैडेट्स का दिल गुनगुना रहा है, आशा का दीपक इनके मन में जल चुका है और आज अपनी दीक्षांत परेड संपन्न होने के साथ ही, अंतिम पग रखने के साथ ही ये अपने कर्तव्य क्षेत्र में कूद पड़ेंगे। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कंटक निर्मम का। एक खेप है शेष किसी भी पार उसे कर जाओ, उस देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। प्रदीप्त लक्ष्य झिलमिलाता हुआ इनके सामने। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। अंतिम पग रखने के साथ ही ये बल की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो आगामी में प्राप्त प्रशिक्षण के बल पर इनका स्वाभिमान देखते ही बनेगा। अंतिम पग रखने के साथ ही हमारे कैडेट बल की मुख्य धारा में सम्मिलित हो चुके। पीछे आरपीएफ का सुसज्जित बैंड जिसके कमांड है श्री मासी प्रसाद के साथ हमारे कैडेट को अवस्थी, मेरे साथ श्री जितेंद्र शर्मा, सहायक सुरक्षा आयुक्त, हम आपसे यही विदा लेते हैं। सभी अतिथिगणों से निवेदन है, मुख्य हाल में एक और अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, कृपया अल्पाहार ग्रहण करने को चलें। जय हिंद। Thank you to all the online viewers who were connected to us all through this passing out parade. Thank you.